Welcome to online classes of Darul Madina International Islamic Schooling System. Dear children, today we will study the topics referring to the context, idioms, note of Shabdulati Bitai, kinds of sentences, and present continuous tense, which is included in your summer vacation work. So I hope that you have the book, summer vacation work, notebook, pencil, etc. If you don't have any of these things, please collect it quickly. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear children, in order to have the blessings in our knowledge, let's recite the dua. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Rabbi zidni ilma. As-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Dear children, after learning this lecture, you will be able to learn referring to context, filling blanks, usage of idioms, phrases and words and sentences, short note of Shabdul Latif, imperative, declarative sentences and present continuous tense. Dear children, open your summer vacation work and try to match your summer vacation work with this and try to learn the topics in which you have faced the difficulties in order to learn and remember it. Dear children, referring to context का मतलब होता है कि हमने जो कुछ लेसन में या पॉइंट्स में पढ़ा है, ठीक है, वो जो कुछ हमने पोएम या लेसन में पढ़ा है उसके मुतालिक हमसे पूछा जाता है. कोई वर्ड पूछा जाता है, जैसे सपोज के एक वर्ड है पुअर. अब पुअर की मतलब होता है, पुअर का मतलब होता है गरीब. अब उस लेसन में या जुमले में जो वर्ड पुअर इस्तेमाल हुआ है वो किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है. पुअर की बहुत सारी मीनिंग्स हैं. पुअर मतलब गरीब भी है, पुअर मतलब ख़राब किस्म की कोई चीज़ भी है, पुअर मतलब बेचारा भी है. तो उस जुमले में, उस पोएम में किस सेंस में वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको कहते हैं रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. ने उस लेसन के मुतालिक और जिस राइटर ने पोएम लिखा है उसके मुतालिक सवालात होते हैं. So come to the reference to the context. I read this passage. These pieces of all parts and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant whose work was to look after historical remains like ancient buildings and other old things such as these pieces of parts and bricks. आपसे सवालात पूछे जा रहे हैं. नेम द लेसन, क्योंकि आप लेसन को अगर गौर से शौक से पढ़ा हुआ तो आपको पता चल जाएगा ये लाइनें जो है मैंने उस लेसन में पढ़ी थी. व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ दिस लेसन? नेम द लेसन मोहनजोदड़ो. नंबर 2 क्वेश्चन है, हु वाज सर जॉन मार्शल. अब लेसन मोहनजोदड़ो में सर जॉन मार्शल जो एक अंग्रेज़ था उसका जिक्र है, तो उसके मुतालिक आपसे सवाल पूछा जा रहा है.
was Sir John Marshall. इसका आंसर है Sir John Marshall was an English civil servant. And the last question is, what were brought to Sir John Marshall? कि सर जॉन मार्शल के पास कौन कौन सी चीज़ें लाई गई थी? हमने लेसन में पढ़ा होगा कौन कौन सी चीज़ें लाई गई थी, और यही आंसर लेसन में लिखा हुआ है. द आंसर इज द पीसेस ऑफ ऑल पार्ट्स एंड ब्रिक्स वर ब्रॉट टू हिम. सो दीज आर द क्वेश्चंस regarding explain with reference to the context of the lesson. Now come to the reference to the context about poem. How strong you are, how unafraid, how green thy leaves in spite of all the midday flames that burning fall upon thy unprotected head. अब ये किसी लेसन की 4 लाइनें हैं. And these groups of lines are called stanza of the poem. तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में भी, और यहीं पर भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि नेम द पोएम एंड द पोएटिस, कि ये किस शायर ने या लेडी शायर ने इस पोएम को लिखा है. इसका आंसर है मिसेस एल्सा कॉजी रोड दिस पोएम. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई डज द पोएटिस से दैट द नीम ट्री इज अनअफ्रेड? हम इस पोएम जो है नीम ट्री में पढ़ा है कि शायर कहता है जो नीम ट्री दरख्त जो है वो बिल्कुल बहादुर है. अब यही पूछा जा रहा है कि शायर ने इसको बहादुर क्यों कहा है, और यही सब कुछ हमारे इस पोएम नीम ट्री में लिखा हुआ है. इसका आंसर है द पोएट सेज दिस बिकॉज द नीम ट्री बेयर्स स्कॉचिंग हीट ऑफ सनलाइट एंड येट प्रोवाइड्स सूदिंग शेड्स टू द ट्रेवल्स एंड पीपल. कि नीम ट्री जो है वो सूरज की गर्म शुआएं बर्दाश्त करता है, और उसके बावजूद भी लोगों को वो राहत देता है, सुकून बख्श शेड देता है, छांव देता है. इसलिए हम नीम ट्री को बहादुर कहते हैं. हमें कोई तकलीफ दे तो हम कहते हैं हम उसको भी तकलीफ दें, मगर ये नीम ट्री इतना बहादुर है कि तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद भी दूसरों को वो राहत दे रहा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. फ्लेम द अंडरलाइन वर्ड. फ्लेम द अंडरलाइन वर्ड इज डैश नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव. अब देखिए इस स्टेंजा में की तीसरी लाइन में तीसरा वर्ड लिखा हुआ है फ्लेम. अब हमसे पूछा जा रहा है कि फ्लेम वर्ड जो है वो क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है. तो हम माशाल्लाह पढ़ के आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्तलिफ क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं, और हमें मालूम होना चाहिए, और आप माशाल्लाह सही जवाब भी आपके जहन में होगा कि ये जो फ्लेम वर्ड है ये क्या है, ये किसी चीज़ का नाम है. अब किसी चीज़ का नाम होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, noun. The answer to this question is noun. I hope you have understood this topic referring to the context regarding prose and poem very well. Now come to the missing word. Here question is supply the missing word. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina in dash AD. तो इसका आंसर है 622. The second blank is only the dash of a person makes him superior to others. Only the dash of a person makes him superior to others. कि फ़कत एक चीज़ है जो एक इंसान को दूसरे इंसानों से अफजल बनाती है. वो कौन सी चीज़ है, हमने लेसन में पढ़ा है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट का ये जुमला है. इसमें आएगा गुडनेस. ओनली द गुडनेस ऑफ अ पर्सन मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर्स. कम टू blank number 3. The best find of Mohenjo-daro is the head of a dish. प्यारे बच्चों, आपने माशाल्लाह जहन में
सही वर्ड जो यहाँ पे आना चाहिए वो सोच लिया होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं मोहनजोदड़ो लेसन में। तो इसका करेक्ट आंसर है बल। द बेस्ट फाइंड ऑफ मोहनजोदड़ो इज द हेड ऑफ बल। अब यहाँ पर है इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। हम ये पढ़ चुके हैं कि इडियम्स क्या होता है, फ्रेजेस क्या होता है और वर्ड क्या होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि वर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो मुकम्मल मीनिंग देता है। जैसे स्कूल है, स्कूल में लेटर्स आ रहे हैं SCHOOL, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो एक मुकम्मल मीनिंग दे रहे हैं, तो इसको हम वर्ड कहते हैं। अगर मैं बोलूँ चीकू चीकू, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है मगर इससे कोई मतलब नहीं लग रहा, तो कीचू कीचू ये कोई वर्ड नहीं होगा। लेटर ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है मगर कोई मफहम नहीं दे रहा, तो इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो वर्ड जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिससे कोई मतलब पूरा मतलब निकले। अब आते हैं फ्रेजेस पे। फ्रेजेस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे हेड ऑफ अ बल, हेड ऑफ अ बल ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। सेंस तो निकल रहा है मगर पूरा जुमला नहीं है, इसलिए इसको हम फ्रेज कहेंगे। अब आते हैं इडियम्स पे। इडियम्स जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मगर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ होते हैं, मतलब कुछ और होता है। वर्ड्स कुछ और होते हैं, मतलब कुछ और निकलता है, तो इसको हम इडियम्स कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है राउंड द क्लॉक। अब इसमें लफ्ज़ राउंड भी आ रहा है, मीन्स चौगिर्द। क्लॉक घड़ी को बोलते हैं, मगर इसका मतलब क्या निकला है राउंड द क्लॉक का, दिन रात। तो ये इडियम है। राउंड द क्लॉक अल्फाज कुछ और हैं, मतलब कुछ और निकल रहा है, तो इसी को हम इडियम कहते हैं। इसका दूसरा मिसाल है इडियम की, फिश आउट ऑफ वाटर। अब फिश भी लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, वाटर का भी लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, तो यहाँ अब इडियम की जब हम मीनिंग निकालेंगे तो ना मछली का जिक्र होगा ना पानी का जिक्र होगा, तो इसी को हम इडियम कहते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है बेचैन, बेकरार। ठीक है, तो ये कुछ इडियम्स, फ्रेजेस और वर्ड्स हैं जिसको हमने जुमलों में यूज़ किया है। नंबर 1 है लास्ट, मीन्स आखिरी। माई लास्ट डे एट स्कूल वाज एन इनक्रेडिबल डे। इसका मकसद है मेरा आखिरी दिन जो स्कूल में था वो बिल्कुल बेहतरीन था। most of the students are learning through online classes। आजकल बहुत सारे तलबा व तालबात ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए सीख रहे हैं। few मतलब थोड़ा। I have been reciting Holy Quran for last few days। नंबर 4 है a lot of, means बहुत ज़्यादा। a lot of people are working, a lot of people are doing work at their homes। आजकल बहुत सारे लोग घर पर काम कर रहे हैं। Many का मतलब होता है ज़्यादा। Many of the birds are flying to the cold areas। बहुत सारे परिंदे जो हैं आजकल ठंडे इलाकों की तरफ जा रहे हैं। My dear children, I hope you are listening me very well and understood this topic also very well। Now come to the short note of शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। ये शाह अब्दुल लतीफ़ हमारा लेसन भी है, लेसन नंबर 2 है हमारे बुक का। तो आइए इसको पढ़ते हैं। ट्राई टू लिसन दिस note of Shah Abdul Latif Bhittai with full concentration। Shah Abdul Latif Bhittai rahmatullah alayhi was a great saint and poet of Sindh। He was born in 1102 Hijra in a small village called Hala Haveli। In his early life, his heart was filled with the love and devotion of Allah Almighty। So he devoted his whole life worshipping, loving and remembering his Allah Almighty। When his parents departed the life,
He left his home and started living on the mount to have self-isolation for the sake of remembering his merciful Allah Almighty. He was not only a great saint, but also a great poet of saint. Many people became devotees to him. He gave a message of love and peace in his poetry. Apart from a poet, and Saint Abdul Latif Bhittai Rahmatullah was also a scholar of Arabic and Persian. Through his inspirational poetry, people all over the world remember him with golden words. His collection of poetry is known as Risalo of Shah Abdul Latif Bhittai. Dear children, now come to the meaning of this short note of Shah Abdul Latif Bhittai. Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah was a great saint and poet of the saints. He was born in 1102 Hijra in a small village called Hala Haveli. कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो न सिर्फ एक बुजुर्ग था, वली था, बल्कि एक शायर भी था सिंध का, जो 1102 हिजरी में हाला हवेली के नाम से जो गांव है उसमें पैदा हुए. In his early life, his heart was filled with love and devotion of Allah Almighty, so he devoted his whole life worshipping, loving and remembering his Allah Almighty. क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ का दिल अल्लाह की मोहब्बत से, अक़ीदत से भर गया था, इसलिए आपने पूरी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की याद में, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत में गुजारी. When his parents departed the life, जब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन का इंतकाल हो गया, he felt his home and started living on the mount to have self-isolation for the sake of remembering his merciful Allah Almighty. जब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गए, तो आपने अपना घर छोड़ा और एक मिट्टी के दड़े पर रहना शुरू किया ताकि तन्हाई मिले. आप चाहते थे कि गोशा नशे नहीं हो, इसलिए आपने घर छोड़ा और अल्लाह की याद में वहाँ पे ज़िंदगी बसरना शुरू की. He was not only a great saint but also a great poet of saint. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई न फ़कत एक अजीम बुज़ुर्ग था, बल्कि सिंध का अजीम शायर भी था. Many people became devotees to him. काफ़ी सारे लोग आपके अक़ीदतमंद बने. He gave a message of love and peace in his poetry. शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपनी शायरी में मोहब्बत का और अमन का पैगाम दिया है. Apart from a poet and saint, Shah Abdul Latif Bhittai was also a scholar of Arabic and Persian. शाह अब्दुल लतीफ़ न सिर्फ एक बुज़ुर्ग था, एक शायर था, बल्कि आप स्कॉलर भी थे, आलिम थे अरबिक के और पर्शियन लैंग्वेज के. Through his inspirational poetry, people all over the world remember him with the golden words. आपकी जोश दिलाने वाली, ज़िंदगी बदल देने वाली शायरी जो थी, उसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग आपको सुनहरी अल्फाजों से याद करते हैं. इस कलेक्शन ऑफ पोएट्री इज नोन एज रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई. शाह अब्दुल लतीफ़ ने जो शायरी की है और उस शायरी का जो मजमुआ बना है, उस मजमुए का नाम है प्यारे बच्चों रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई. तो प्यारे बच्चों, हम अभी आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ. इम्परेटिव सेंटेंसेस. प्यारे बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस वो जुमले होते हैं जो हम हुक्म में, एडवाइस में, अर्ज़ में, नसीहत में यूज़ करते हैं. आइए पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस, इट
expresses the order, request or suggestion. It starts with verb. The subject you is dropped. इम्परेटिव सेंटेंस जो है हुक्म में, अर्ज में, गुजारिश में, नसीहत के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर इसमें जो सब्जेक्ट यू होता है वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए वो जुमले में लिखा नहीं जाता, नहीं बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ओपन द बुक, बुक खोलिए, किताब खोलिए. डोंट गो नाउ, अभी मत जाइए. इसमें जो मुखातिब है वो किसी दूसरे शख्स के साथ हम जब मुखातिब होते हैं तो ये जुमले बोलते हैं, इसमें यू नहीं बोला जाता. नंबर 3 एग्जाम्पल जो है इम्परेटिव सेंटेंस की वो है स्टे एट होम, घर में रुकिए. ठीक है प्यारे बच्चे. नाउ कम टू द कन्वर्शन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस इनटू, सॉरी, यहाँ पर है कि हमने इम्परेटिव सेंटेंसेस को फाइंड करना है. ये जो हमें 3, 4, 5 जुमले दिए गए, इसमें हमें इम्परेटिव सेंटेंसेस जो है इसको फाइंड आउट करना है. नंबर 1 है टेल हिम टू गो होम एंड सॉर्टिंग थिंग्स आउट फर्स्ट, अदरवाइज यू विल हैव टू सेट आउट विदाउट हिम, मटर्ड अली. ये जुमला अली बोल रहा है, इसमें हुक्म कहाँ पर आ रहा है? टेल हिम टू गो होम एंड सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट. यहाँ पर अली हुक्म दे रहा है कि उनको बोलें कि घर जाएं और चीज़ों को अलग अलग करें सबसे पहले. ये हुक्म दे रहा है अली. अदरवाइज यू विल हैव टू सेट ऑफ विदाउट हिम, ऑर्डर्ड अली. अदरवाइज आप जो इसके बगैर, हम जो है इसके बगैर अदरवाइज चले जाएंगे, ये अली कह रहे हैं. तो जो पहला जुमला है वो इम्परेटिव सेंटेंस है. वाई मी, रिप्लाइड रजा स्टेपिंग फॉरवर्ड एंड फ्राउनिंग. अब ये जुमला रजा बोल रहा है, इसमें कोई हुक्मी या अर्ज करने वाला जुमला नहीं है, तो इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे. तीसरा है he will listen to you, ये आपको सुनेगा, इसमें कोई भी हुक्म, अर्ज, गुजारिश नहीं है, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है. Go on, he will listen to you. प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस है? Go on, जारी रखें, जारी रखें, यहाँ पे ये हुक्म है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है. लास्ट है just because he is my brother does not mean he will listen to me anymore. Then he will listen to you. Go and tell him yourself. इसका मतलब पहले बच्चे समझते हैं. कह रहे हैं इसका मकसद ये नहीं है कि ये मेरा भाई है तो ये मेरी बात सुनेगा. कह रहे हैं मेरी बात सुनने से ज़्यादा ये आपकी बात सुनेगा. Go and tell him yourself. जाओ और उसको खुद ही बताओ. अब देखें, पहले जो जुमले हैं ना, इसमें कोई हुक्म नहीं आ रहा, सिर्फ एक सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है. अब लास्ट का जुमला है, इसमें हुक्म है गो एंड टेल हिम योरसेल्फ, जाओ और खुद ही बताओ इसको, तो ये हुक्मी जुमला है, इसलिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है. ठीक है बच्चों, तो हम इसको इम्परेटिव सेंटेंसेस को मज़ीद हम देखते हैं. ठीक है, ये कुछ और एग्जाम्पल्स है इम्परेटिव सेंटेंस की. कीप क्वाइट, खामोश बैठो. राइट 5 पेजेस डेली, रोज़ाना 5 पेजेस लिखें, यह भी हुक्मी जुमला है. डोंट यूज़ कैलकुलेटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम के दौरान कैलकुलेटर इस्तेमाल मत करें, यह भी तंबी वाला जुमला है, हुक्मी जुमला है. रीड द लेसन विद फुल कंसंट्रेशन, लेसन को पूरे गौर व ध्यान से पढ़िए, हुक्म है यहाँ पर. डोंट वॉक अंडर सन, यहाँ पे हिदायत की जा रही है कि सूरज के दौर, मतलब सूरज जब निकल रहा हो तो आप उसमें मत घूमिए.
And here the other exercise for you is change the following imperative into declarative sentences. आप यहाँ पे imperative sentences तो है मगर इसको declarative sentences में करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम पहले फ़र्क मालूम करते हैं कि what is the difference between imperatives and declarative sentences. हम सीख कर आ रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस वो जुमले होते हैं जिसमें हुक्म हो, अर्ज़ हो, नसीहत हो, तंबीह की जा रही हो, गुजारिश हो, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस करते हैं। मगर उस इम्परेटिव सेंटेंस को हमें किस में करना है? एक बयानी जुमले में करना है, एक स्टेटमेंट सिंपल जुमले में कन्वर्ट करना है। जैसे कि जुमला नंबर 1 है, स्टॉप राइटिंग इमीडिएटली, जल्दी से लिखना बंद करो, ये हुक्म में। अब इसको हमने सिंपल जुमले में करना है। आवर टीचर ऑर्डर्ड अस टू स्टॉप राइटिंग, हमारे टीचर ने हमें कहा, हुक्म दिया कि लिखना बंद करो। ठीक है प्यारे बच्चों। सेंटेंस नंबर 2 है, बी रेडी टू गो, जाने के लिए तैयार रहो। आस्क हिम टू बी रेडी टू गो, ये सिंपल सेंटेंस है, इससे इम्परेटिव सेंटेंस है। कम टू सेंटेंस नंबर 3। अब ये सेंटेंस नंबर 3 है इम्परेटिव सेंटेंस, प्लीज़ पास द साल्ट, मेहरबानी फरमा के नमक को आगे दीजिए, ये हुक्म है। इसका सिंपल जुमला है, वुड यू लाइक टू पास द साल्ट, क्या आप आगे साल्ट, क्या आप आगे नमक देंगे। नंबर 4, नेवर डू इट अगेन, इसको दोबारा मत करें, तंबीह है, नसीहत की जा रही है कि यहाँ इसको दोबारा मत करें। अब इसी सिंपल जुमले को हम, इसी इम्परेटिव जुमले को, हुक्मी जुमले को हम सिंपल जुमले में बनाएंगे, बयानी जुमले में बनाएंगे, जो होगा माई फादर एडवाइस मी नॉट टू डू इट अगेन। सो माई डियर चिल्ड्रन, आई होप यू आर listening me very well and understood this topic of imperative and declarative sentences. Now come to the next topic, which is present continuous tense. Present tense क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसा काम जो हाल वक्त में, जो वक्त मौजूद है उसमें हम कर रहे हो, या जारी हो, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला कहते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आप उसको सुन लीजिए। वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, द एक्शन इज नॉट फिनिश्ड। सॉरी, ऐसा काम जो हाल ही में जारी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग एट होम, मैं घर में पढ़ रहा हूँ। यू आर सिटिंग इन द रूम, तुम कमरे में बैठे हो। तो ये जो काम हो रहा है ना, ये हो रहे हैं, जारी है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं कि ये हाल ही वक्त में जारी है, न शुरू होंगे न ख़त्म हो रहे हैं, जारी है। इसका 3 जुमला है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बाग में खेल रहे हैं, बच्चों के खेलने का अमल बाग में जारी है। इसकी थोड़ी सी मज़ीद तफसीलात है, वो ये है कि वो यूज इज़ विथ ई शी इट एंड सिंगल नाउन। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं, ही शी इट, और कोई भी सिंगुलर नेम हो, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या बेजान हो, चीज़ हो, तो उसके लिए हम इज़ यूज़ करते हैं। और फ़कत जो सब्जेक्ट आए है उसके लिए हम एम यूज़ करते हैं। और यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन हो उसके लिए हम आर यूज़ करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ही इज़ राइटिंग, शी इज़ राइटिंग, इट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, असलम इज़ थिंकिंग अबाउट हिज
एग्जाम, ठीक है, तो इसमें ज़ है। अब सेकंड में एक वी यूज़ एम विथ आर, आई एम लिसनिंग, आई एम लर्निंग ग्रामर, आई एम स्लीपिंग नाउ, तो आई के साथ एम आएगा। और जो यू वी दे है इसके साथ आर आएगा। और प्लूरल नाउन जैसे असलम एंड रिहान आर राइटिंग देयर होमवर्क, असलम भी है रिहान भी है, प्लूरल नाउन आ गए तो इसलिए हम इसमें आर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, नाउ दिस इज द टॉपिक रिलेवेंट टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, एम एंड आर। हम पढ़ चुके हैं कि इस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है आर के अलावा, तो आई के साथ एम लगती है, बाकी यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ आर लगता है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। आई डैश राइटिंग अ लेटर, यू डैश राइडिंग साइकिल, वी डैश स्टडिंग एट आवर होम्स, दे डैश रिसाइटिंग द होली कुरान, he dash watching मदनी चैनल, she dash sleeping। तो हम ये देखना है कि किस में इज आएगा, किस में एम आएगा और किस में आर आएगा, और हम पढ़ भी चुके। ठीक है, नंबर 1 है आई डैश राइटिंग अ लेटर। इसमें क्या आएगा प्यारा बच्चों, अगर आपने जवाब एम सोच के रखा है तो ये जवाब बिल्कुल सही है, आई के साथ एम आएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। यू क्या आएगा इसके साथ, if R is in your mind then you are correct कि इसमें R आएगा। You are riding cycle, आप साइकिल चला रहे हैं। we के साथ क्या आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, R। we are studying at our homes, they के साथ क्या आएगा, अगर आपने R जवाब सोच लिया है तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। वी आर स्टडिंग एट आवर होम्स, दे आर रिसाइटिंग द होली कुरान, ही डैश वाचिंग मदनी चैनल। ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल सही जवाब सोच लिया होगा कि ही में क्या आएगा, इज़ वाचिंग मदनी चैनल। एंड द लास्ट वन इज़ शी स्लीपिंग। शी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जारी बात है इसमें भी क्या आएगा, इज आएगा। वेल डन, शी इज स्लीपिंग। नाउ रिपीट आफ्टर मी दिस सेंटेंसेस। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। यू आर राइडिंग साइकिल, आप साइकिल चला रहे हैं। वी आर स्टडिंग एट आवर होम्स, हम अपने घर में पढ़ रहे हैं या हम अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं। दे आर रिसाइटिंग द होली कुरान, वो कुरान शरीफ की तलावत कर रहे हैं। ही इज़ वॉचिंग मदनी चैनल, वो मदनी चैनल देख रहा है। शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है। सो माई डियर चिल्ड्रन, यू हैव लर्न दिस टॉपिक वेरी वेल। For your practice, I am giving you home assignment, which is make 10 sentences of present continuous tense and write imperative sentences of your own and then convert them into declarative sentences. प्यारे बच्चों, आपको 10 जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बनाने हैं और द सेकंड असाइनमेंट फॉर यू इज़ आपको पहले imperative sentences बनाने हैं और उसके बाद imperative sentences को आपने किस में कन्वर्ट करना है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। इम्परेटिव हुक्मी जुमला बनाएंगे, उसको आपने एक सिंपल से स्टेटमेंट जुमला बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, डियर चिल्ड्रन, आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव taught in this lecture is clear and you have got it very well. Revise it at your home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallah khair.